With this, I'll start my session for today. Today's session is on mind power. Today's session is on mind power, and it is something very, very, very important. We'll actually learn how we can program our mind. सालों से हम जो काम करना चाहते थे हम नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे उसे प्रोग्राम करें, हम किस तरह से अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने पूरे कंट्रोल में ला सके, एंड वी डिक्टेट आवर माइंड रादर देन माइंड डिक्टेटिंग अस. अभी क्या हो रहा है, हमारा माइंड हमें डिक्टेट करता है हर चीज में कि ये करो, ये नहीं करो, हम मनमौजी होते जा रहे हैं. सो अ वेरी good afternoon to all of you. Today we start on day 4 of our spiritual intelligence series. We start with a very important topic on mind power for materialization, increasing your emotional quotient. So we start with that. So first of all, I'd like to share some mind-boggling facts, something which will really amaze you. Uh, in May, on May 6, 1954, something very special happened. Actually, what had happened before May 6, 1954, in the athletic fraternity, जो athletes थे, उनमें एक ऐसी बात थी कि we can't cover more than 1 mile in less than 4 minutes. हम 1 माइल 4 मिनट से कम समय पे कवर नहीं कर सकते. On May 6, 1954, something very interesting happened. There was an athlete, a gentleman called Roger Bannister. And what he did, he broke this record. This record of covering 1 mile in less than 4 minutes. And you know what happened? The moment he broke this record, उन्होंने तो रिकॉर्ड को ब्रेक किया ही किया, एक नया रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया, बट उनके साथ there were many other athletes who also came up and they broke this record. Before him, nobody could, but the moment he did, there were a lot to follow. Similarly, 1970, it happened in Russia. There was a weightlifter called Vasilov Alexeyev. So before 1970, there was a feeling in the minds of all the weightlifters that we can't lift more than 500 pounds over our head like this. We can't lift. Now this weightlifter, this gentleman, Mr. Alexeyev, he lifted 501 pounds in 1970. And the moment he lifted, उन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया ही बनाया, but उनके साथ there was a line of other weightlifters जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया. So what do you think what happened in both the incidents? क्या हुआ ऐसा? कुछ मैजिक हुआ, गिली गिली गू, छू मंतर, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ऐसा कुछ हुआ कि समथिंग हैपेंड एंड लोगों की फिजियोलॉजी चेंज हो गई, फिजिकल पास चेंज हो गए? क्या हुआ? What happened? If quickly on the chat box you let me know that what special happened कि एक इंसान ने जैसे ही रिकॉर्ड ब्रेक किया, बाकी भी ब्रेक करना शुरू कर दिए. ऐसी क्या खास बात हुई? Anybody wants to give a try? Yes, very good. Vaishnavi just shared mindset. Kev said competition. Karthik is saying motivation. Yes, you all are on target. Yes, जैसे ही एक ने रिकॉर्ड ब्रेक किया तो दूसरों को क्या लगा? ये अचीवेबल है. अभी तक सबके मन ने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि हम 1 माइल को 4 मिनट से कम समय में नहीं कवर कर सकते. और वहां पे वेटलिफ्टर्स ने 500 पाउंड से ज्यादा हम नहीं उठा सकते, बट जैसे ही एक इंसान ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया, क्या हुआ? कोई गिली गिली गू नहीं हुआ, कोई छूमंतर नहीं हुआ, कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए. क्या चेंज हुआ? हमारा माइंड चेंज हुआ, हमारी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हुई, और हमारे माइंड ने हमारी बॉडी को ये डायरेक्शन दे दी. या कैन यू ऑल हियर मी? Can you all hear me? Because people are responding to me on the chat box. सबको सुनाई दे रहा है, or should I repeat all over again? Yeah, I'm receiving all the yeses. So fine, I'll continue. So
क्या हुआ, सबके माइंड में ये चेंज आ गया कि यस, दिस इज पॉसिबल, दिस इज अचीवेबल। तो जैसे ही उनके माइंड ने ये चीज को एक्सेप्ट किया, हमारा माइंड हमारी बॉडी को डायरेक्ट करता है। तो माइंड ने बॉडी को मैसेज दिया, दिस इज पॉसिबल, यू जस्ट गो अहेड। उसे बोलते हैं ना, हरी झंडी दिखा दी, ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। और ग्रीन सिग्नल जैसे ही मिला, वैसे ही क्या हुआ, सबने रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया। राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर माइंड। आवर माइंड प्लेज ऑल द रोल। जितने भी मैजिक हमारे लाइफ में होते हैं, गुड और बैड, गुड भी मैजिक होता है और बैड भी मैजिक होता है। गुड और बैड दोनों ही मैजिक हमारा माइंड कराता है। ये गुड मैजिक मैंने बताया, I'll share a bad magic also with you. It's a true incident. Once what had happened, whatever I'm sharing a true incident, huh? all quoted, true incident. Nothing is from the mind. It's all like quoted. Once what happened, there was a cleaner. एक रेफ्रिजरेशन यूनिट में एक क्लीनर काम करता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो क्लीनर उस यूनिट में क्लीनिंग के लिए अंदर घुसा, and somebody by mistake locked him from outside. So the moment he got locked, he started panicking. वो घबरा गया, वो डर गया कि अरे मैं तो लॉक हो गया हूं, अब क्या होगा। And then in the morning, when people opened the door, they found him dead. And somewhere he scribbled saying that I am feeling very, very cold and I don't think I can survive this cold and I might die. And he actually died. And when these people checked, they found your refrigeration unit on ही नहीं था। वो refrigeration unit on ही नहीं था। It was at a normal temperature. But this cleaner, in his mind, knew that ये refrigeration unit एक freezing temperature तक चला जाता है, जहां पे एक normal human being survive नहीं कर सकता। His mind had accepted this fact and it sent the signals to his body, and his body on its own started feeling cold, and और उस cold से वो मर गया। So can you imagine the kind of games our mind play with us? हमारा माइंड हमारे साथ कितने खेल खेलता जाता है, अच्छे भी और बुरे भी। तो आज के सेशन के बाद हम अपने माइंड को सिर्फ अच्छे खेल खेलने देंगे। इनफैक्ट हम अपने माइंड को बताएंगे क्या खेल खेलना है, और वही खेल खेलने देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? Do you want to direct your mind in playing all positive games with you, in ensuring that whatever directs to your body, it is for your good? Yes. So let's get started. So यहाँ पे आई एम श्योर ऑल आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मेरे यहाँ पे आईटी भी पढ़ रहे हैं, सो दे आर very much familiar with input process output diagram. Can you follow the diagram that I've just shared? Input, process and output. I think this is basics of computer. Actually, I am also a computer engineer. I've done my BTech in computer, so this is something very close to our heart. Input, process and output diagram. This is the first thing that we are being taught. So this is what I'm going to share with you, the working of the mind. कि हमारा जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है। वो इनपुट करता है इंफॉर्मेशंस को, प्रोसेस करता है, एंड देन प्रोसेस्ड जो इंफॉर्मेशन है वो फिर आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइसेस क्या है? क्विकली इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी, व्हाट हेल्प्स यू इन इनपुटिंग थिंग्स टू अ कंप्यूटर? कीबोर्ड, yes. What? I think there are a lot of you. How can Dhanashri, how we can share CPU? CPU processes, it does not input. Mouse, yes. Keyboard, maybe your mic nowadays, right? All these things are input devices. All these things are input devices. Monitor is not an input device, Vishaka. It's an output device. It's an output device. Yes, scanner. Yes. So microphone, scanner, mouse, keyboard, these are all input device. Now, what does the processing of the computer? क्या process करता है? Your CPU, your motherboard. These are the processing unit.
एंड क्या आउटपुट करता है? जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड हो गई उसको क्या कौन आउटपुट करता है? Your screen, your printer, right? All these things are your speakers. All these things are the output devices, right? So similarly, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था, हम ह्यूमन बीइंग्स वी आर मच मच मोर पावरफुल देन द कंप्यूटर्स वी आर प्लेइंग विद. We have got trillion of cells and each cell has the power of a supercomputer. तो जस्ट इमेजिन हम 1 ट्रिलियन सुपर कंप्यूटर है, तो हमारे अंदर का जो सुपर कंप्यूटर है वो भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट डायग्राम ही फॉलो करता है. तो इनपुट इनपुट कैसे होता है हमारा? हमारे अंदर जो इनपुट डिवाइसेस है वो है हमारे 5 सेंसेस. We input through our 5 senses. What are those 5 senses? If you could quickly help me. The 5 senses are ears, eyes, nose, tongue, and skin. These are our 5 senses, 5 input devices. So we collect all the information of the environment through these 5 senses, and then it goes to our processor. What is a processor? Our processor are 4 dimensions of the mind, which is also called Chatushthay Antakaran. These are Man, Buddhi, Chit और अहंकार. मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार. Our ego, our intellect, our mind, and our consciousness, which is called the chitta. So these 4 are the Chatushtay Antakaran, which the 4 dimensions of the mind, which does the processing. This in the whole in the session today, our session today is actually dedicated to this, because हम processing पे work करने वाले हैं. We will learn how our mind processes the information, and then we will use that technique to reprogram our mind. Okay, so our session today is totally focused on the processing, on understanding of this Chatushtay Antakaran. And then how do we output? We do output through the organs of action, our Karmendri, which are legs, hands, mouth, anus, and genitals. Can you all hear me? Because I'm receiving couple of messages ki hearing mein problem hai. Can you all hear me? Yes. Okay. Okay. Most of you can. So Khushi, please check the system at your end, because others are able to hear me and they're responding also me on chat box. So please check the system at your end. Yeah. So input, we take input from our 5 senses: ear, eyes, nose, tongue, skin. We do processing through man, buddhi, chit, ahankar, and we send the processed information through the output through legs, hands, mouth, anus, and genitals. These are our 5 organs of action जो हमारी कर्मेंद्री है. So this is the way our mind works. Now we know the input organs really, really well. We know the output organs really, really well, right? Our session today is focused on understanding the processor, the 4 dimensions of the mind. So first is our intellect, buddhi. Now what is this buddhi? Buddhi is our intellect. Buddhi is basically logic. It is analytical. It believes in yes or no. It is binary, 0 and 1. हो रहा है या नहीं हो रहा है. It loves dissecting. कोई भी चीज को डाइसेक्ट करने में उसे बड़ा मजा आता है. वो हर चीज को बोलते ना चीड़ फाड़ के उसको चेक करने की कोशिश करता है. And then it follows a path. Right? This is what बुद्धि does. So अगर हम एक इंटेलेक्चुअल पर्सन को हम एक फ्लावर दे देंगे, so what he will do? He will dissect the flower into pieces. कि भाई इसके अंदर क्या है, पेटल्स है, पोलन ग्रेन्स है, स्टेम है, ये है, वो है. So we'll take care of that. But what he will miss? He'll miss the beauty of the flower. He'll miss the fragrance of the flower. So जो एक intellectual person जो होता है, जो एक बुद्धिजीवी होता है, he's totally focused
where the power of the knife lies in? कहां पे एक चाकू की ताकत होती है? कहां पे एक चाकू की ताकत होती है? Can you all hear me? Can you all hear me? Yes. So कहाँ पे? I think it's raining quite badly नागपुर. So इसलिए आप लोग के कई जगह में शायद sound issues आ रहा है. So please pardon me for that because most of you are able to hear. So I'll just go on and then we are recording these sessions also. कोई part अगर आपका कहीं पे miss होता है, then you go through the sessions again, right? Because I can't do much about it now because whatever I'm doing, I think it's the best. हो रहा है कहीं कुछ ऊपर नीचे, तो it is because of the weather problems, right? Weather fluctuations. So let's not waste time here. So what I was saying is, चाकू की जो ताकत है वो कहाँ लाई करती है? चाकू की ताकत लाई करती है वो जिसके हाथ में है. हाथों में चाकू की ताकत होती है. बिकॉज अगर एक चाकू को हम किसी सर्जन के हाथ में दे देंगे तो वो क्या करेगा? उस चाकू का क्या करेगा? एक सर्जन उस चाकू का क्या करेगा? वो जीवन दान देगा, वो किसी को लाइफ देगा. बट अगर हम किसी मर्डरर के हाथ में दे देंगे चाकू को तो क्या होगा? क्या होगा? वो लाइफ ले लेगा. सो जो चाकू की ताकत है वो डिपेंड करती है कि किसके हाथ में वो चाकू है, किसके हाथ में वो चाकू लाई करता है. सर्जन के हाथ में अगर चाकू है तो वो जीवन दान देगा, और अगर मर्डर के हाथ में है तो वो लाइफ ले लेगा. सो अब ये हाथ क्या है? सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट बुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डज ऑल द डायसेक्शन, इट कम्स अप विद द डिसीजन मेकिंग. बट the power of buddhi lies in the hand. Then what is that hand? The hand is our ego. हैंड है हमारा ईगो. तो ईगो क्या है? ईगो है एसोसिएशन. एसोसिएशन जो हमने बनाए हैं. एसोसिएशन हमारी इस बॉडी के साथ में, एसोसिएशन हमारी मेमोरीज के साथ में, हमारे अभी के जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में, हमारे चाइल्डहुड के बारे में, हम जब मदर्स के वूम में थे उस समय, एंड मे बी हम जो अपने प्रीवियस लाइफ में थे तब. राइट. तो जो एसोसिएशन है वो एसोसिएशन इज आर ईगो, जो हमने ओवर द इयर्स और ओवर द लाइव्स, because this is not this life we are living, we have lived many lives, and over all the lives we have created lot of sanskar in us, we have created lot of memories in us which are strong in our manomay kosh. हमारे माइंड बॉडी में हमारी सारी लाइफ की सारी मेमोरीज स्टोर्ड है, और वो सारी मेमोरीज जो है वो हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट करती है, हमारे ईगो को क्रिएट करती है, और हमारे माइंड में कुछ डूज एंड डोंट्स को डाल देती है, हमें एक चश्मा पहना देती है. और वो चश्मा पहनकर हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी दुनिया है, बट हम कैसा देखते हैं? बट हम कैसा देखते हैं? जिस कलर का चश्मा हमने पहना है उस कलर से हम उस दुनिया को देखते हैं. वी गेट बायस्ड. ईगो बायसेस अस. ईगो क्या करता है? हमारे अंदर प्रेजुडिस क्रिएट कर देता है. अगर हमारा किसी के साथ में एक अच्छा एसोसिएशन रहा है तो वो पर्सन जब हमें आके कुछ कहेगा वी स्टार्ट ट्रस्टिंग हिम. बट एट द सेम टाइम इफ हमारा किसी के साथ में कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा है, वो अगर कुछ कहेगा देन वी ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. वी कांट ट्रस्ट हिम. सो बेसिकली हमारे सारे जो हमारी सोच है, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, उसको हमारा ईगो पूरा कलर कर देता है. We don't see the world as it is, but we see the world with the eye of our ego.
with the eye of our previous experiences. इसलिए सेम चीज हमें कुछ और लगती है और किसी को कुछ और लगती है. सेम सिचुएशन को हर इंसान अलग अलग हैंडल करता है. राइट? सो दिस वाज अबाउट आवर अहंकार. तो जो बुद्धि है वो बुद्धि पूरी की पूरी कंट्रोल्ड और गाइडेड है किसके द्वारा? हमारे ईगो के द्वारा, हमारे अहंकार के द्वारा. And then we come to Manas, which I'm going to discuss in great detail in the next slide. And then finally, Chit or consciousness, which is something beyond. I am going to discuss about it tomorrow. आज का जो हमारा सेशन है वो बुद्धि, अहंकार और मनस, intellect, ego and mind, but totally focused होगा. Chit is something, conscious is something which goes in the domain of Gyanmay Kosha, which we are going to discuss tomorrow. So how does our manas work? हमारा mind कैसे work करता है? तो हमारा जो mind है, it is basically divided into conscious mind and subconscious mind. Now what is conscious mind? Conscious mind is our logical mind, our analytical mind. What does conscious mind does? Conscious mind takes the information from the environment, from the surrounding. How? With the help of the five senses. हमारे जो five senses है, ears, eyes, nose, tongue and skin, इनके help से वो पूरे surrounding से, environment से information को, input को लेता है. और input को लेने के बाद में conscious mind क्या करता है? वो इसको send कर देता है अपने processor को. वो कौन है? Intellect. But intellect का एक mentor है. Intellect does not work on his own. इंटेलेक्ट का अपना एक गुरु है, एक मेंटर है. वो कौन है? वो है ईगो. तो इंटेलेक्ट के पास जैसे ही वो इंफॉर्मेशन जाता है, इंटेलेक्ट अपने गुरु को फॉरवर्ड कर देता है कि प्लीज हेल्प मी विद दिस, हाउ डू आई रिजॉल्व इट. एंड वो ईगो क्या करता है? ईगो अपनी सारी प्रेजुडिसेस को, जो उसकी पूरी कलरिंग थी, उस कलरिंग को उस इंफॉर्मेशन के अंदर में फिल इन कर देता है. एंड अब जो इंफॉर्मेशन बन गई है वो नॉर्मल नहीं है, वो अनबायस्ड नहीं है. वो क्या हो गई? पूरी कलर्ड हो गई है, पूरी डिस्टॉर्टेड हो गई है. डिस्टॉर्टेड बाय आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. और ये डिस्टॉर्टेड आउटपुट अब कॉन्शियस माइंड क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड को फॉरवर्ड कर देता है. हैव यू अंडरस्टूड टिल नाउ? आपको अभी तक का माइंड प्रोग्रामिंग समझ में आया? माइंड कैसे वर्क कर रहा है? कॉन्शियस माइंड फाइव सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को लेता है और भेज देता है इंटेलेक्ट के पास. इंटेलेक्ट फिर फ्लैग रेस करता है, हैंड रेस करता है और हेल्प सीख करता है ईगो से. और ईगो क्या करता है? ईगो के डेटाबेस में पूरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके, जिसकी वो कलरिंग, बायसिंग वो डाल देता है उस इंफॉर्मेशन में और उसको प्रोसेस कर देता है. और अब ये प्रोसेस्ड, डिस्टॉर्टेड, बायस्ड आउटपुट कॉन्शियस माइंड किसको भेजता है? सबकॉन्शियस माइंड को. एंड नाउ व्हाट डज सबकॉन्शियस माइंड डज? सबकॉन्शियस माइंड इज अ परफेक्ट वर्कर. बोलते हैं ना, वो एकदम लॉयल है, बिल्कुल लॉयल. It acts as a servant to the conscious mind and it is totally dedicated and loyal towards him. वो बिल्कुल अपने कॉन्शियस माइंड के प्रति बिल्कुल समर्पित है. कॉन्शियस माइंड जो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको क्वेश्चन नहीं करता, वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है. जो हुक्म मेरे आका. अगर कॉन्शियस माइंड बोलेगा अभी रात के 3 बज रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ओके ओके. अगर बोल रहा है नहीं नहीं अभी दिन के 3 बज रहे हैं, तो भी बोलेगा ओके. वो अपना दिमाग नहीं चलाता, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है कॉन्शियस माइंड को. एंड वॉट एवर कम्स फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड इट एक्सेप्ट्स इट टोटली.
तो ओबीडियंट एंड लॉयल होने के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड की एक और बहुत खास खास क्वालिटी है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। तो जैसे जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में आती है, वो उसको रिपीट लूप में डाल देता है। आप लोग कहते हैं रिपीट लूप्स, नॉन स्टॉप नेवर एंडिंग लूप, तो बस वो रिपीट लूप में डाल देता है। एंड वो जो इंफॉर्मेशन है वो टेप रिकॉर्डर की तरह सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। कब तक होती जाती है? कब तक होती जाती है? ये लूप का एंडिंग सिंटैक्स क्या है? वो तब तक होती जाती है जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में फुल्ली इम्प्रिंटेड ना हो जाए, जब तक वो उसकी हैबिट ना बन जाए। क्लियर हुआ आप लोगों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज द वर्किंग ऑफ द माइंड। कुड यू अंडरस्टैंड? है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट मैंने इसे बहुत सिंपल करके आप लोग को समझाया है, बिकॉज समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्रोग्रामिंग में भी होता है ना, जितनी सिंपल प्रोग्रामिंग हो उतनी अच्छी होती है, जितनी कॉम्प्लिकेशन डाल देते हैं उतना गड़बड़ हो जाता है, डिबगिंग उतनी मुश्किल हो जाती है, राइट? सो again I'll repeat the whole process. Conscious mind takes the input with the help of five senses, sends that input to intellect. Intellect seeks help from ego. Ego biases, colors, distorts the information, and this distorted processed information is then sent to the subconscious mind, and the subconscious mind keeps on repeating this information whether it is correct, wrong, whatever, irrespective of it. जो भी conscious mind send करता है subconscious mind को, it keeps on repeating till it becomes its habit. Right? I'll just share a story with you. आपने देखा एक एलिफेंट को सर्कस में? एंड हैव यू एवर नोटिस्ड कि वो एलिफेंट एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है? और आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि इतना बड़ा एलिफेंट, इतना पावरफुल, एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है? इट लुक्स रिडिक्यूलस, क्योंकि वो एलिफेंट थोड़ा भी ऐसा ऐसा हिलेगा ना, अरे अपने बॉडी के कोई पार्ट को भी हिला देगा तो भी वो रस्सी टूट जाएगी और वो भाग जाएगा। बट एलिफेंट कभी कोशिश ही नहीं करता रस्सी को तोड़ने की और भागने की। व्हाट इज द रीजन? कैन एनीवन हेल्प मी विद द रीजन? रीजन क्या है? क्यों क्यों एलिफेंट कभी कोशिश नहीं करता? रस्सी इतनी पतली है, एक शॉट में टूट सकती है। बट व्हाई द एलिफेंट डज नॉट गिव एन अटेम्प्ट? व्हाई? Why? Because when the elephant was small, the रस्सी was same. यही वो रस्सी थी जिससे वो छोटा बेबी एलिफेंट बंधा हुआ था। बट उस टाइम पे एलिफेंट बेबी था और वो लेस पावरफुल था, एंड कंपेयर टू द बेबी एलिफेंट द रस्सी, द रोप was much stronger. But then what happened? धीरे धीरे, एंड उस टाइम पे क्या हुआ? एलिफेंट नेचुरली, बेबी एलिफेंट, इट ट्राई टू ब्रेक अवे द रोप। उसने बहुत कोशिश की कि टूटे टूटे टूटे, दिन रात कोशिश की, बट रोप उससे बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड नहीं टूटा था। इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे जैसे एलिफेंट बड़ा होने लगा, क्या हुआ? एलिफेंट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्शियस माइंड ने इस मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया कि ये रस्सी बहुत पावरफुल है, एंड एलिफेंट तुम इस रस्सी के सामने बहुत कमजोर हो, यू आर नॉट पावरफुल एट ऑल, राइट? सो विद दिस इंफॉर्मेशन सेट इन द कॉन्शियस माइंड, the elephant started growing. और एलिफेंट जैसे जैसे बड़ा होता गया, रस्सी कमजोर होती गई। बट एलिफेंट के सबकॉन्शियस माइंड में ये इम्प्रिंटेड हो गया था कि ये रस्सी कमजोर है,
ये रस्सी कमजोर है, ये रस्सी बहुत पावरफुल है और मैं इस रस्सी के सामने बहुत कमजोर हूं। तो एलिफेंट ने क्या किया, फिर ट्राई करना ही छोड़ दिया। आफ्टर अ व्हाइल एलिफेंट स्टॉप ट्राइंग बिकॉज ही हैड एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि मैं इस रस्सी के सामने बहुत कमजोर हूं। सो प्रॉब्लम रस्सी की नहीं थी, प्रॉब्लम एलिफेंट के ताकत की भी नहीं थी, प्रॉब्लम किसकी थी, प्रॉब्लम किसकी थी, प्रॉब्लम एलिफेंट के माइंड की थी। यस प्रिया, यू आर करेक्ट, प्रॉब्लम एलिफेंट के माइंड की थी। एलिफेंट के माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया था। नाउ आई लाइक ऑल ऑफ यू टू रिफ्लेक्ट विद इन योर सेल्फ कि ऐसी कितनी सारी चीजों को आपने अपने माइंड में भर लिया है बचपन से लेके अभी तक। एक बार आप शायद क्लास में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होंगे एंड फंबल कर गए होंगे, एंड देन आपके माइंड ने, कॉन्शियस माइंड ने क्या मैसेज भेज दिया सबकॉन्शियस माइंड को, दैट यू आर नॉट अ गुड स्पीकर, यू कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। और अब जैसे ही मौका आता है पब्लिक स्पीकिंग का या 10 लोगों के सामने बोलने का, क्या होता है, यू स्टार्ट पैनिकिंग, यू स्टार्ट पैनिकिंग। It's not that you're not a good speaker, you are a good speaker. And if you're not, you can always become a good speaker. It's not a big deal. But your mind has accepted this fact that you can't. Similarly, कभी हुआ होगा आपके साथ में कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा, you couldn't score well, you forgot everything while writing the answer paper. और अब हर बार जब एग्जाम आने वाला होता है तो आपकी वो मेमोरी एक्टिवेटेड हो जाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहता है, यू आर नो गुड, जितना भी पढ़ लो बेटा एग्जाम में तो भूलोगे ही भूलोगे, भूलोगे ही भूलोगे, मार्क्स तो तेरे कभी भी अच्छे नहीं आने वाले। बोलता है कि नहीं बोलता है सबकॉन्शियस माइंड, यस और नो? तो ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो हमने एक्सेप्ट कर ली है अपने अंदर, बट दे आर नॉट ट्रुथ, they are not truth, they are not truth, but we have accepted them। और अब वो सारी बातें कमजोर हो चुकी हैं एलिफेंट की उस रस्सी की तरह, जैसे वो एलिफेंट की रस्सी कमजोर हो चुकी है अब कोई काम की नहीं, वैसे ये सारे बातें भी हमारे लिए कमजोर हो चुकी हैं। वी आर मच बेटर, वी आर मच मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट वी वर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी इंसिडेंट हुआ था जिसके बेसिस पर आज हम अपने आप को बोलते हैं कि वी आर बैड स्पीकर्स और वी आर बैड स्टूडेंट्स और व्हाटएवर, इट इज नॉट द ट्रुथ। सो हमें क्या करना होगा, सो हमें क्या करना होगा, हमें रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी अपने सारे रॉन्ग प्रोग्रामिंग की। हमारे कॉन्शियस माइंड ने जो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर दी है, वी नीड टू रीप्रोग्राम इट ऑल ओवर अगेन। And from now on, whatever our conscious mind tries to program in our subconscious mind, we will always keep an eye on it। हम unconsciously कुछ भी subconscious mind में program होने नहीं देंगे। We will debug every code that subconscious mind tries to write on the subconscious mind। Are you with me on this? Are you with me? Chat box, are you with me? From now on, we will not let write our conscious mind any kind of code on the subconscious mind। हर कोड हमारे थ्रू होके जाएगा, हर कोड को हम डिबग करेंगे, हम चेक करेंगे और जो हमें सही लगेगा हम उसे ही लिखने देंगे। यस, एंड जो रॉन्ग कोडिंग हो चुकी है उसको भी हम वापस रिविजिट करेंगे और सबकी डिबगिंग करेंगे, सबका करेक्शन करेंगे। राइट, right? So to understand this, to do the, now we start with the programming part, very interesting। but programming
करने के पहले हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो जानना पड़ेगा ना, उसके सिंटैक्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है, जानना होगा कि नहीं जानना होगा। सीधा ही आप सी प्लस प्लस जावा और इस समय प्रोग्राम, आई डोंट नो अभी आप लोग क्या यूज करते थे, वी यूज्ड टू डू दीज लाइक 20 years बैक, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, ऑल दीज थिंग्स यूज्ड टू डू। अब और भी बहुत हाई फाई आ गए होंगे, आई एम नॉट अपडेटेड much right now. So we need to know the syntax of the language to do the programming. So let's know the syntax of subconscious mind, that how does the subconscious mind works, what are the characteristics of the subconscious mind, and then we will use these characteristics to our advantage. We'll use it the way we want to make use of it, right? तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्या है, इट इज डायरेक्शनलेस, it is directionless, it is very very powerful, but it has no direction. It takes the directions of the conscious mind, खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है. It is like a jinn, it is like a jinn, but वो जिन किसका सारा कंट्रोल किसके पास में है, उसके आका के पास में. तो सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ जिन and the conscious mind is its aka, right? So that's the first important characteristic of subconscious mind, that it does not hold control. उसके सारे controls conscious mind के पास में है. So we'll use it when we are programming it. Next, when subconscious mind is not engaged, then it gets into the negative programming. Like in nature में क्या होता है, जब एक जमीन होती है और उसमें हम बीज नहीं डालते तो क्या होता है, वीड्स ग्रो हो जाते हैं, खरपतवार, सारे वीड्स, जंगली पेड़ पौधे ग्रो होके पूरे जमीन को खराब कर देते हैं. यस और नो, यस और नो, होता है ना, होता है ना, कि जब कोई जमीन में अगर कोई किसान, कोई फार्मर बीज नहीं डालता है तो क्या होता है, वहां पे सारे बैड जंगली वीड्स और ये सब उग जाते हैं जो पूरे जमीन को खराब कर देते हैं. सिमिलरली जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपरली एंगेज नहीं होता है, it the subconscious mind needs some anchoring, it needs to be anchored to something. तो अगर हम कोई फोर्सफुल एंकरिंग नहीं करते हैं तो वो क्या करता है, वो कोई नेगेटिव एंटिटी के साथ में एंकर्ड हो जाता है. आई जस्ट शेयर अ स्टोरी विथ यू, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एक बार एक आदमी था, है ना, वो आपने देखा होगा सब महादेव और ये सारे सीरियल्स, आई एम श्योर आपने देखे होंगे, जिसमें जितने वो सब होते थे राक्षस वगैरह वगैरह, सब बैठ जाते थे ध्यान साधना में और जप तप करना शुरू कर देते थे, और फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते थे कहीं से, एंड ब्रह्मा जी बोलते थे वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुमको क्या चाहिए. सुना है कि नहीं सुना इस टाइप की स्टोरीज, सुनी है आप लोगों ने, यस और नो, यस और नो, यस ना, ये बहुत कॉमन है हमारे सारे माइथोलॉजी में, तो सबसे कॉमन पार्ट है कि वो बस बैठ गए ध्यान करने और ब्रह्मा जी आते हैं, प्रकट होते हैं और बोलते हैं बस वत्स क्या चाहिए तुम्हें, और फिर वो वत्स कहता है कि मुझे ये पावर चाहिए, वो पावर चाहिए. वैसे एक और इसी टाइप का एक वत्स था, तो वो जब ध्यान करने बैठा तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए. तो उन्होंने कहा बेटा क्या चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी बहुत काम है मेरे पास, तो आप मुझे एक जिन दे दो जिसको मैं जो काम बोलूं वो तुरंत के तुरंत करके दे दे, सो दैट आई एम रिलैक्स, मैं बहुत थक गया हूं इतना काम कर करके. तो ब्रह्मा जी बोले ओके, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम तो जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा, तो मैं तुमको दे देता हूँ, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बोले क्या बात है, बोले ये जिन मैं जो तुमको दे रहा हूँ बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बट इसकी एक प्रॉब्लम है, ये खाली नहीं बैठ सकता, और जैसे ही खाली रहेगा ये तुम्हें खाने आ जाएगा, इट विल गॉबल यू अप, तुमको ही खा जाएगा. तो वो आदमी बोला ब्रह्मा जी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मेरे पास एक नेवर नेवर एंडिंग टू डू लिस्ट है, सो ही नेवर गेट फ्री, डोंट वरी, मैं उसको हमेशा काम पे लगा के रखूंगा, अब बस दे दो जिन मुझे. चलो ठीक है, ले संभालो संभालो. फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसने जिन को काम पे लगाया, बट जिन तो इतना पावरफुल था कि वो आदमी काम खत्म नहीं करता था, पता ना उसके पहले जिन करके वापस आ जाता था. तो थोड़े दिन तक तो उसका लंबी लिस्ट थी, धीरे धीरे लिस्ट एग्जॉस्ट होने लग गई, तो वो आदमी डरने लग गया, बोला ओ माय गॉड ये कैसे चलेगा, ये तो मतलब
जैसा कि ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव ने बताया ये तो मुझे आके खा जाएगा। तब उस आदमी ने एक तरकीब लगाई, तो उसने एक खंबा गाड़ दिया और उस जिन को बोला कि जिन, जब मैं तुमको कुछ काम बताऊं तो वो काम करो, जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है इस खंबे के ऊपर में चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, और तब तक चढ़ते उतरते रहो जब तक मैं तुमको नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ना दूं तो। राइट? तो बेसिकली उस आदमी ने क्या कर दिया, उस जिन की प्रोग्रामिंग कर दी, एक उसको एक रिपीट लूप में डाल दिया कि रिपीट गोइंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अंटिल आई गिव यू द नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और उसकी जान बची। राइट? तो वो जिन कौन है? वो जिन कौन है? वो जिन हमारा मन है। वो जिन हमारा मन है। तो जैसे हमारा मन खाली होता है वो क्या करता है, वो नेगेटिव थॉट्स में अटैच हो जाता है, और जैसे वो नेगेटिव थॉट्स में अटैच होता है वो हमारे भक्षण करना शुरू कर देता है, हमें ही खत्म कर देता है। बिकॉज हमें कौन खत्म कर रहा है? उस इंसान जिसकी मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जो रेफ्रिजरेशन यूनिट में मर गया था। किसने उसे खत्म किया? उसके नेगेटिव थॉट्स ने। उसके नेगेटिव थॉट्स ने कि भाई ये जगह बहुत ठंडी, जबकि वो ठंडी थी ही नहीं। वो जगह ठंडी थी नहीं, बट उसको क्या लगा ये जगह बहुत ठंडी है और ठंड के कारण मैं मर रहा हूं और मैं मर जाऊंगा, और सही में मर गया। तो सिमिलरली हमारे अंदर जो ये जिन है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये क्या करता है? ये सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम इसको प्रॉपरली गाइड ना करें तो ये नेगेटिव थॉट्स के साथ अटैच होके हमें ही खत्म कर देता है। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा हमारे अंदर एक खंबा गाड़ के रखना है। क्या चीज का खंबा? पॉजिटिव थॉट्स का खंबा, पॉजिटिव चीजों का खंबा। और हमेशा कुछ अचीव हम करना चाहते हैं। आज आई जस्ट होप आई एम एबल टू डू दैट द मेडिटेशन विथ यू। तो हम जो अपने लाइफ में, हम जो अपनी लाइफ की एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं, हम उस वो स्क्रिप्ट का खंबा, कि जब भी मेरा मन खाली हो वो उस स्क्रिप्ट के साथ अटैच हो जाए, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसके साथ अटैच हो जाए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अटैच हो जाए। इफ आई डू लॉट ऑफ मंत्र चैंटिंग, देन मंत्रास के साथ अटैच हो जाए। बेसिकली सम पॉजिटिव थिंग दैट यू हैव स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड आप अपनी प्रोग्रामिंग कर दे रहे हो कि वो उसी के साथ में अटैच हो जाए। क्लियर है? क्लियर हो रहा है आपको? आर यू विथ मी ऑन दिस? Is it clear to you? Quickly. Perfect. Perfect. So the first characteristic is it is directionless. Second is it triggers negative self-programming when not engaged. Now next, it has no difference between fact and fiction. अब हमारा जो माइंड है ना, उसको फैक्ट और फिक्शन के बीच का अंतर नहीं मालूम। उसको बिल्कुल भी अंतर नहीं मालूम कि क्या अभी तुरंत सच हो रहा है और क्या मेरे माइंड की क्रिएशन है। वो हर चीज को फैक्ट से ही लेता है। वाई? वाई? क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, राइट? और हम क्या करते हैं, न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं। अब ये जो न्यूरल पाथवे है, वो जब वो इंसिडेंट होती है तो भी वो सेम न्यूरल पाथवे ट्रैवर्स होता है, और जब वो इंसिडेंट के बारे में हम सोचते हैं तभी भी वो सेम न्यूरल पाथवे ट्रैवर्स होता है। और न्यूरल पाथवे जितनी बार ट्रैवर्स होगा, चाहे सोच के, चाहे करके, चाहे एक्चुअल में एक्शन करके, या उसके बारे में जस्ट विजुअलाइज करके सोच के, जब भी वो न्यूरल पाथवे ट्रैवर्स होगा, क्या होगा? वो स्ट्रेंथन होता जाएगा, वो और ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। पावरफुल होते होते वो इतना पावरफुल बन जाएगा कि वो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगा। फिर जब भी हम वो काम करना चाहेंगे वो रिजल्ट वही होगा जैसा हमने न्यूरल पाथवे क्रिएट किया है। क्लियर हुआ आपको क्यों फैक्ट और फिक्शन के बीच में डिफरेंस नहीं है? यस और नो? क्लियर हुआ? यस। सो अब
5 साल पहले आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपका मजाक उड़ाया था, जिसके कारण आपकी दोस्ती गड़बड़ हो गई थी, राइट? तो अभी भी जब भी फ्रेंडशिप की कोई बात आती है, क्या होता है, वो मेमोरी आपकी लाइव हो जाती है। और जैसी वो मेमोरी लाइव हो जाती है, क्या होता है, अब वही न्यूरल पाथवे पर ट्रैवर्स करना चालू कर देते हो और उसको स्ट्रेंथन कर देते हो। तो हुआ था वो इंसिडेंट 5 साल पहले, बट बार बार उस इंसिडेंट के बारे में सोचकर आप क्या कर रहे हो, उस इंसिडेंट को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ रहे हो और उसके न्यूरल पाथवे को आप क्या कर दे रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो और पावरफुल कर दे रहे हो। राइट और रॉन्ग? यस। So it has no difference between fact और fiction. और इस चीज को यूज करके पता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। देव ऑल्सो कॉलेज जहां पे उन्होंने 2 फुटबॉल टीम बनाई थी। एक फुटबॉल टीम जो थी ना, उसको उन्होंने टीम ए, उसको उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस करने को लगाया था, ये करो वो करो, गोल करो, गोल कीपिंग करो, डिफेंड करो, वगैरह वगैरह वगैरह। और दूसरी टीम को वो प्रैक्टिस करने के बाद में, एक्चुअल फिजिकल प्रैक्टिस करने के बाद में थोड़ा देर रोकते थे और रोक के क्या करते थे, आईज क्लोज करा के मेडिटेट करवाते थे और वो जितना उन्होंने प्रैक्टिस किया है उस प्रैक्टिस को मेंटली रिहर्स करवाते थे। और दोनों टीम इक्वली अच्छी थी, द प्लेयर्स वर इक्वली गुड इन बोथ द टीम्स, नो टीम वाज बेटर और वर्स। बट व्हेन द रियल मैच हैपेंड, do you know which team perform better, A or B? Which perform better? Quickly chat box. A और B, कौन सी टीम ने बेटर परफॉर्म किया? A ने सिर्फ प्रैक्टिस की और B ने प्रैक्टिस के साथ में उसको मेंटली रिहर्स किया। Yes, excellent. I'm getting all B's here. बी टीम, बिकॉज बी टीम का न्यूरल पाथवे और ज्यादा एक्टिवेटेड था। प्रैक्टिस वो कर ही रहे थे, बट प्रैक्टिस के साथ एडिशनली वो सारी चीजों को अपने माइंड में चर्न कर करके उन्होंने जब न्यूरल पाथवे को इतना पावरफुल कर दिया कि व्हेन द डे ऑफ मैच हैपेंड, ऑल शॉट्स वाज लाइक जूम जूम जूम, लग रहा था जैसे बिल्कुल ही एक प्रिपेयर्ड मैच है। बोलते हैं ना, मैच फिक्सिंग होके रखी है एकदम। बॉल इस फुटबॉलर के पास से उस फुटबॉलर के पास जा रहा है, फिर वहां से वहां जा रहा है, फिर वहां से वहां जा रहा है। एवरीथिंग सीम्ड एज इफ एवरीथिंग वाज फिक्स्ड। यस, इट वाज फिक्स्ड इन द माइंड्स ऑफ एवरीबॉडी। सबने अपने एक एक मूव को फिक्स कर लिया था माइंड में, राइट? सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। नेक्स्ट, इट इज इमोशनल एंड सेंसरी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 5 दिन पहले लंच में क्या खाया था, आप बता पाओगे क्या? 5 दिन पहले क्या खाया था, 10 दिन पहले क्या खाया था? विल यू रिमेम्बर? थोड़ा मुश्किल जाएगा, सोचना पड़ेगा। मतलब बता भी पाओगे, बट देन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ब्रेन वर्क। कौन फालतू का इतना ब्रेन को वो करेगा? व्हाई, व्हाट फॉर? बट अगर मैं पूछूं कि पिछली बार जब आपका बर्थडे था तो आपने क्या खाया था, डू यू रिमेम्बर और डोंट यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर पिछली बार जब आपका बर्थडे था, व्हाट हैपेंड ओवर लंच, व्हाट हैपेंड ओवर डिनर? एवरीथिंग यू रिमेम्बर टू द टी। यहाँ तक कि वो सब चीजों का स्वाद पता है, वो सब खाने के टाइम में क्या कॉन्वर्सेशंस हुए थे वो पता है, हर चीज पता है। सिर्फ पिछले बर्थडे की नहीं, पिछले से पिछले, पिछले से पिछले से पिछले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, ऑलमोस्ट आपको हर बात की मेमोरी याद है। वाई? वाई? बिकॉज आपके इमोशंस, यस, केव जस्ट शेयर्ड, बिकॉज दैट टाइम वी वर एंजॉयिंग मीन्स इमोशन। इमोशन, इट वॉज अ स्पेशल डे, यस। इमोशन, इमोशन, गुड और बैड, कोई भी प्रकार का इमोशन, वही अगर मैं कोई दुख भरी बात आपसे पूछूं तो वो भी आपको याद रहेगी। any incident where you were highly emotional in a good way or a bad way, you remember it very very strongly. Why? Because it was emotional. Why? Because your subconscious mind works better with emotions. जैसे आप इमोशन को डालते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसको और स्ट्रांगली प्रोग्राम कर लेता है।
सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली प्रोग्राम करता है। सो आपकी इंफॉर्मेशन जितनी इमोशनल होगी वो उतनी स्ट्रांगली सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? गॉट इट? एंड देन सेंसरी। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने एक बुक पढ़ी, वो कितनी याद है, और आपने एक मूवी देखा, वो कितना याद है? क्या ज्यादा याद है आपको, बुक या मूवी? व्हाट यू रिमेंबर मच मोर क्विकली? ऑफ कोर्स movie. movie movie why? Because in movie all your senses are involved. all your senses are involved in a movie. इसलिए हमें मूवी बहुत जल्दी याद होती है, बहुत जल्दी याद होती है, सारे डायलॉग्स याद हो जाते हैं। अभी मैं अगर पूछना शुरू करूं मूवी के डायलॉग्स तो शायद मैं चुप हो जाऊंगी, आप सब शुरू हो जाओगे दम एक्शन के साथ, उस एक्सेंट में बिल्कुल, मतलब हीरो भी शर्मा जाएगा कि भाई मैंने तो इतना अच्छा नहीं किया था जितना आप लोग कर रहे हो। राइट? वाई? बिकॉज आपके सेंसेस इन्वॉल्व है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सेंसरी है। जो इंफॉर्मेशन में जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वो उसे उतना स्ट्रांगली स्टोर करता है। राइट? तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन को जितने इमोशनल और जितने सेंसरी इनपुट्स के साथ उसकी चर्निंग करते हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतनी स्ट्रांगली इम्प्रिंटेड हो जाता है। आर यू विथ मी विद दिस? यस? यस? क्विकली नेक्स्ट, विजुअल। अब मैं आपको बोलूं क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट अ पिंक एलिफेंट। पिंक एलिफेंट। क्या दिखा आपको? कुछ दिखा कि कुछ लिख के आया? क्या हुआ? कुछ दिखा, कोई चित्र दिखी कि कुछ लिख के आया? आप जब भी कोई भी अपनी मेमोरी की बातों को सोचते हैं तो पिक्चर आता है कि लिख के आता है, टेक्स्ट आता है कि इमेज आता है? हमेशा हमारे माइंड में एक मूवी चलती है, मूवी मूवी मूवी, हमेशा हमेशा। क्योंकि दो जो लैंग्वेज जो लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड के स्टोरेज का, वो लैंग्वेज है विजुअल्स का। इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स। विजुअल्स, गॉट इट? ये सारी चीज सिंटैक्स को आपको अच्छे से समझना है, बिकॉज आप जितने अच्छे से सिंटैक्स सिमेंटिक्स समझोगे इसके, आप उतनी अच्छी प्रोग्रामिंग कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे प्रोग्रामिंग करवाने वाली हूँ आपके माइंड की। तो अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके बी एबल टू प्रोग्राम योर माइंड। राइट? सो subconscious mind is directionless. It triggers negative self programming when not engaged. It has no difference between fact or fiction. It is emotional. It is sensory. It is visual. It stores in the form of images. Now it lives in the present moment. तो जो मैंने कहा 5 साल पहले फ्रेंड से झगड़ा हुआ, लेकिन आप जैसे अब भी सोचते हो उसके बारे में, क्या होता है? आपका न्यूरल पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, और न्यूरल पाथवे जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है वो इंसिडेंट प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है। क्लियर? तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए ना पास्ट टेंस है ना फ्यूचर टेंस है, उसके लिए सिर्फ एक ही है, वो है प्रेजेंट मोमेंट। क्लियर? क्लियर? It only believes in the present moment. It does not believe in past. It does not believe in future. It only believes in the present moment. And finally, it does not understand no or any doubt. Subconscious mind के का जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसमें नो, NO शब्द आता ही नहीं है। जैसे आप नो वर्ड को यूज करोगे पूरी प्रोग्रामिंग हॉल्ट पे आ जाएगी। जैसे ही आप कोई डाउट क्रिएट करोगे सबकॉन्शियस माइंड में, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड क्या है? बहुत लॉयल है, बहुत लॉयल है। वो हर चीज को एज ट्रूथ एक्सेप्ट करता है। तो जैसे आप कोई भी चीज की डाउट क्रिएट करते हो या नो क्रिएट करते हो, इट सिस्टम कम्स टू अ क्रैश। वो हॉल्ट पे आ जाता है, क्रैश हो जाता है सिस्टम। दैट प्रोग्राम डज नॉट वर्क एनी मोर। क्लियर? क्लियर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और ये आप समझोगे तो ही आगे समझ पाओगे, अदरवाइज फिर आगे कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है।
क्लियर? एकदम समझ में आया? शैल आई मूव ऑन? डन, डन. So pictorially, I will just explain you the working of the mind. So conscious mind collects inputs from the five senses. It processes under the guidelines of intellect and ego and adds emotions from the past experiences. Then the subconscious mind stores in the form of visuals and images. And the subconscious mind, whenever it is triggered, it is then sent back. जब जब हम ट्रिगर करते हैं न्यूरल पाथवे एक्टिवेट हो जाता है. So this working of the mind is absolutely clear with you, right? So I will move on to the programming part, which is very important. In fact, हमने जो अभी तक इतनी कहानी की है वो इसी के लिए किया है, इसी के लिए किया है कि हम प्रोग्रामिंग को कर सके. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गेट इनटू अल्फा मोड. अब व्हाट इज अल्फा मोड? तो हमने क्या पाया कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जिन है और कॉन्शियस माइंड उसका आका है. सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के बिना काम नहीं कर सकता, बट कॉन्शियस माइंड क्या करता है? हर चीज को गड़बड़ कर देता है, बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स इंटेलेक्ट एंड ईगो, जिसके चक्कर में आके कॉन्शियस माइंड सारे काम का कबाड़ा कर देता है. और उसी से आज हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हो रखी है. तो हमें क्या करना है? अब अगर हम कॉन्शियस माइंड को बोलेंगे भाई कॉन्शियस माइंड आप प्लीज ये सब चीज मत करिए, सबकॉन्शियस को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, तो क्या कॉन्शियस माइंड अलाउ करेगा? नहीं करेगा. अगर हम कोई आका के पास में जाएंगे और उसको बोलेंगे कि प्लीज गिव अस एक्सेस टू योर जिन, वी वांट टू कंट्रोल योर जिन, तो कभी कोई आका अपना जिन को कंट्रोल करने देगा आपको? नेवर एवर. बोलेगा भागो, माई पावर लाइज इन माई जिन. मैं आका ही बना बैठा हूं क्योंकि मेरे पास एक जिन है, वो जिन आपको दे दूंगा फिर मैं ही वेस्ट हो जाऊंगा. सो जस्ट रन अवे. तो हमें क्या करना होगा? हमें बाईपास करना पड़ेगा आका. We need to bypass the conscious mind and enter the subconscious mind चुपके से. Are you understanding what I'm saying? थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा हम टेढ़ा तरीका यूज कर रहे हैं. You are understanding? We are going to bypass our conscious mind and enter into the subconscious mind एकदम चोरी छुपे. तो वो कैसे हम अंदर घुसेंगे? Now we have got different levels of frequencies जिस पर हम ऑपरेट करते हैं. तो कॉन्शियस माइंड वर्क्स एट अ बीटा फ्रीक्वेंसी एंड सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स एट अल्फा फ्रीक्वेंसी. What is beta frequency? Beta frequency is the higher frequencies. जो जैसे अभी हम सब बीटा फ्रीक्वेंसी में, हम जितने भी सांसारिक काम करते हैं, दौड़ना भागना ये करना वो करना, they are always on a run. So that time they are all in the beta mode. And the moment we go slow, we get relaxed, अपने माइंड को शांत करते हैं, अपने अंदर में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको स्लो डाउन करते हैं, एक मेडिटेटिव मोड में चले जाते हैं, तो हम किस में एंटर कर जाते हैं? अल्फा मोड. एंड दैट इज द मोड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. तो हमको क्या करना है? हमको स्विच ओवर करना है. स्विच ओवर फ्रॉम द बीटा मोड टू द अल्फा मोड. द मोमेंट वी स्विच फ्रॉम बीटा टू अल्फा, द कंट्रोल कम्स इन द हैंड ऑफ, shifts from conscious mind to subconscious mind. The moment we enter alpha mode, the control is in the hand of subconscious mind. हम चुपके से subconscious mind में enter कर जाते हैं. Clear हुआ आपको ये point? Please, just let me know. Is this clear to you? Wonderful, wonderful. So now how to enter into alpha mode? तो alpha mode में enter करने के बहुत सारे तरीके हैं. पहला, breath work. मैं चाहूंगी आप लोग सब for few seconds breathe very slow, very slow. Did you find some difference in your mind and your thoughts? Did you feel more relaxed the moment you started breathing very slowly? Yes or no? This was too short a time. This was too short a time, but
जब आप इसको करोगे तो आप पाओगे कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, आप एकदम शांत हो गए हो, राइट? सो what we need to do is through breath work, pranayam really helps you to get into alpha mode. Here I won't be able to teach you pranayam, but there are lots of information available on net. Ramdev Baba is the proponent of pranayam. आप उन्हीं की videos देख लीजिए and start doing kapalbhati, bhasrika, anulom vilom, omkar, brahmari, ujjayi. These are very powerful pranayam. आप जब प्राणायाम करोगे, ब्रेथ वर्क करोगे, और अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं, आप अपनी ब्रीदिंग को स्लो डाउन कर लो और ब्रीदिंग को डीप कर लो। डीप इन द सेंस कि जब आप ब्रीद इन करो तो आपका पूरा स्टमक भरना चाहिए, पूरा चेस्ट एक्सपैंड होना चाहिए और पूरा शोल्डर्स ऐसे एक्सपैंड होना चाहिए ऐसे। सो जब आप इस तरह से फुल ब्रीदिंग करोगे, full breathing and slow breathing, your mind will shift from beta to alpha mode. Are you with me? Are you understanding? Please keep letting me know through chat box because I'm not able to see you. So it's important that I should know because what I am sharing is something very deep. मैं इसको बहुत simple बना दी हूँ, बात और है, but ये जो concept है बहुत 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 deep है, right? So breath work के through you can get into alpha mode. Then second way you can get into alpha mode is through meditation. Yesterday, I took you through a very small meditation exercise, very small. But उसमें भी आपको अच्छा फील हुआ था कि नहीं हुआ था? Yes or no? And today I will try again to do a meditation. So जब meditation करते हैं, again we go into alpha mode. When we relax ourselves, when we get into silence, when we do some form of mantra chanting. Just now somebody asked me that when we can we do omkar chanting. Yes, excellent. omkar chanting और जो भी chanting है, हम सबके religion में कोई ना कोई form of chantings है, तो आप वो जब chanting करते हो तो आप अल्फा मोड में चले जाते हो. तो बेसिकली थ्रू दीज मेथड्स, थ्रू डीप ब्रीदिंग, फुल ब्रीदिंग, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, साइलेंस, मंत्रा चैंटिंग, यू नीड टू शिफ्ट फ्रॉम बीटा मोड टू अल्फा मोड. तो जैसे आप बीटा मोड से अल्फा मोड में गए, आप कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाते हो. और जैसे आप एंटर कर जाते हो, यू विल गेट इनटू स्टेप नंबर 2, दैट इज विजुअलाइजेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या फॉर्म में करता है हर चीज को? विजुअल्स के फॉर्म में. तो अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग विजुअली करेंगे तो क्या होगा? वो उसी की लैंग्वेज होगी. और जब हम उसी की लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसे बेटर समझेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू यू इन हिंदी और इंग्लिश, यू आर अंडरस्टैंडिंग. सपोज मैं फ्रेंच में आपसे बात कर रही होती थी तो क्या होता था? आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती थी, और क्या पता वो ट्रांसलेटर ढंग से ट्रांसलेट करे ना करे, आपको कितना समझ आए ना आए, बिकॉज आई एम टॉकिंग इन द लैंग्वेज which you understand, you are understanding really really nicely. So similarly, the language of the subconscious mind is visuals. So when we talk to subconscious mind in the form of visuals, then it is very good. Can you hear me? I just got a message saying that the voice is not coming. Is my voice coming? Quickly, we don't have time. I'm just left with half an hour. Yes, it's coming. I'm audible. Perfect. तो हमें विजुअल्स के फॉर्म में हमें प्रोग्राम करनी है. तो हम सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएंगे और घुस के क्या करेंगे? हम विजुअलाइजेशन करेंगे. क्या चीज का विजुअलाइजेशन? जो हम अचीव करना चाहते हैं. क्योंकि विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो हम न्यूरल पाथवर्क नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं, और जब हम विजुअलाइज करके उस न्यूरल पाथवे को स्टैब्लिश करते हैं तो हर बार जब हम विजुअलाइज करते जाते हैं तो न्यूरल पाथवर्क स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जाता है. और जब एक दिन वैसी सिचुएशन आती है, हम एकदम
प्रो होते हैं उस काम में, हम परफेक्ट होते हैं और हम वही रिजल्ट्स पाते हैं जो रिजल्ट्स हमने अपने लिए डिसाइड किया था, बिकॉज मेरा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली मैप्ड होता है, हमारा न्यूरल पाथवे पूरा सेट होता है, लाइक टीम बी ऑफ दैट फुटबॉल टीम. We know all our moves really well, and we emerge as winners, right? So we need to do mind mapping. We need to set the neural pathways. और जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो कैसे विजुअलाइज करना है? पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करके. सपोज आई वांट टू विजुअलाइज दैट आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, तो मैं क्या करूंगी? मैं विजुअलाइज करूंगी दैट आई एम ऑन स्टेज और मेरे सामने thousands of audience है, like you know my eyes, thousands of audience. मैं जब बोल रही हूँ तो तालियां बजी पे बजी जा रही है, माई ईयर्स, मुझे तालियों की आवाज आ रही है. और फिर उसके बाद आई कैन फील ऑन माई स्किन, लाइक यू नो दैट वो ऑडिटोरियम का जो ठंडक है, एयर कंडीशनिंग है, आई कैन फील दैट. आई कैन स्मेल दैट एरोमा ऑफ दैट प्लेस. Right? So through these five senses, if I visualize, then what will happen? My subconscious mind will store it much stronger. And then I need to add emotions to it. कि मैं बोल रही हूँ, लोग ताली बजा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं और मैं एकदम बहुत खुश हो रही हूँ. So what is happening? I'm getting emotional. I'm getting very happy. वेरी हैप्पी. सो इमोशंस, सेंसरी इनपुट्स, ये सब हमें यूज करने होंगे. एंड मैं जो भी विजुअलाइज कर रही हूँ उसके ऊपर मुझे फुल ट्रस्ट एंड कमिटमेंट रखना होगा. द मोमेंट आई स्टार्ट डाउटिंग कि अरे यार 5 लोग के सामने तो तू बोल नहीं सकती और सपने देख रही हजारों के सामने, अगर मैं ऐसी फीलिंग अपने अंदर लाऊंगी तो क्या होगा? क्या होगा? डाउट क्रिएट हो जाएगा. और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में डाउट क्रिएट होता है वो प्रोग्राम हैंग हो जाता है. इट डज नॉट वर्क. आर यू विथ मी? आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? Quickly, yes or no? I'll move on then. Wonderful. Are you all able to see my screen? I just got a message that it's not it's not you can see my screen as well. Can see my screen? Yes. Visible. Perfect. So we first move on to the alpha mode and then we do this visualization exercise. And then what we do? ये visualization exercise के बाद में we do deliberate forceful mind programming by auto suggestions और affirmations. कल हमने हर चक्रा के affirmations discuss किए थे, right? तो वैसे affirmations के through हम अपने mind की programming करते हैं. Now what are these affirmations? Affirmations are positive sentences. Positive sentences जो हम अचीव करना चाहते हैं, जिसके कुछ रूल्स हैं. पहला रूल, इट शुड बी पर्सनल. मेरा एफर्मेशन सिर्फ मेरे बारे में होना चाहिए, ना कि मेरे फ्रेंड्स के बारे में, बिकॉज माई माइंड इज माई माइंड, नॉट देयर्स. I can't create affirmation for somebody else. I can only create affirmation for myself. Second, it has to be in present tense because subconscious mind only understands present tense. अगर मैं बोलूंगी कि मैं बहुत अच्छा जॉब करूंगी जिसमें मेरा 1 करोड़ का पैकेज होगा, रिजेक्टेड. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड फ्यूचर टेंस. आप अगर ये बोलोगे कि मेरा बहुत अच्छा जॉब है, आई एम अर्निंग 1 करोड़, ओ माई गॉड, तो क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज प्रेजेंट टेंस इज द टेंस इट ओनली अंडरस्टैंड्स. थर्ड इज इट शुड बी पॉजिटिव. इट शुड बी पॉजिटिव बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड एनी नेगेटिव. नो शब्द आते ही प्रोग्राम हैंग हो जाता है. It should not have any comparisons because you can only program for your mind. You can't program for anybody else's mind. The moment comparison comes, you are doing for somebody else as well. That does not work. You can never do ki my package should be more than my friend's package. No, that won't work. You have to decide a package for yourself and then do it. And then it should be full of positive, powerful emotions. जितना इमोशनल होगा, जितना सेंसरी होगा आपका विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन, वो उतना ट्रू होगा.
उतना ट्रू होगा। मुकुल जस्ट सेड मैम प्लीज शेयर सम एग्जांपल ऑफ एफर्मेशन। तो मैंने जस्ट अभी शेयर किया दैट आई एम अर्निंग 1 crore पैकेज, आई एम डूइंग जॉब। सपोज आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक इज योर ड्रीम कंपनी, सो आई एम वर्किंग इन फेसबुक in US. You're getting me? So these should be your affirmation followed by these rules. Are you with me? Clear? Clear? Dhanashri, there is some problem at your end because बार बार आपके मैसेज आ रहे हैं, वॉइस नहीं आ रहा है, but others are relating to me. So don't worry, Dhanashri. If you can hear me right now, you can see the recordings. I'll definitely share the recordings. In couple of days, I'll put all these recordings on my YouTube channel. And then you can see from there. Acha, one more thing before I forget. I have my WhatsApp groups where I give support after the sessions, because इसके बाद जब आप चीजों को practice करोगे, चक्रा meditation करोगे, mind programming करोगे, you will come up with a lot of doubts, and that time I'm not available because I go away after 6 days. So what you can do is, on that WhatsApp group, you can, like, just send your questions or whatever you're getting stuck, and then I'll help you through message. I don't take calls. The best way to get in touch with me is through WhatsApp. So I will just share my link over here. I'll just share. I'm not able to paste it. So maybe after I close this session, I will just share the link. Oh yeah, I could do now. So this is a link of one group that I've created for all of you. Those who want, they can just click on this, and they can, like, become a part of my WhatsApp group where I can give you a after support after these 6 days are over, right? So this can be done, and then let's move on. So this was about how you program your subconscious mind. So are you clear with this? Are you clear with this? Quickly, are you clear with this? Because with this, I'm coming to the final slide, and then I'll take you through a meditation session which I really want to do, because तब वो करके आपको एक्चुअल में फील आएगा कि यस, मुझे कैसे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। एंड कल जो हमने चक्रास किया था उसका भी एक शॉर्टर वर्जन करूंगी, तो दोनों, बिकॉज यस्टरडे आई कुड डू दैट आल्सो, सो दोनों को मिला के डू अ कंबाइंड मेडिटेशन विद यू. सो I'll just go, but programming is clear with you or not? Programming is clear with you? Because that was the most important part. So now, some important stuff. In order to ensure that your programming is pakka, you achieve your results, you need to have a pure and burning desire. आपके अंदर जो आपकी डिजायर है ना, वो बहुत स्ट्रांग होनी होगी एकदम। हाँ भाई, हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। अगर इस तरह का लेड बैक एटीट्यूड हुआ तो इट डज नॉट वर्क. माइंड इज वेरी इमोशनल एंड वेरी पावरफुल, तो वो तभी काम करेगा जब आपके डिजायर्स बहुत स्ट्रांग होंगे. एंड एट द सेम टाइम मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, वो है प्योर इंटेंशन. योर इंटेंशंस नीड टू बी प्योर. अगर आपके मन में कुछ सेल्फिश मोटिव है, कुछ खराब फीलिंग्स है, तो फिर ये सब चीजें उनके लिए उतने काम नहीं करती. जो जितने प्योर सोल्स होते हैं ना, जिनके इंटेंशन जितने प्योर होते हैं, दोज हु जस्ट वांट टू, लाइक, बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ एंड अपना अच्छा करना चाहते हैं और अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं, अपने कर्मों में भरोसा रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो क्या होता है, ब्रह्मांड उनका मदद करता है. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर्स. प्लेन एंड सिंपल. तो ये जो साइंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये साइंस सिर्फ और सिर्फ प्योर सोल्स के लिए एप्लीकेबल है. पीपल विद पोल्यूटेड करप्टेड माइंड विद मैलिफाइड इंटेंशंस, उनके लिए ये साइंस वर्केबल नहीं है. इट डज नॉट वर्क फॉर देम. बट फॉर प्योर जेन्युइन पीपल दिस इज, मतलब वो मांगते हैं इतना और मिलता है उनको इतना. इवन दे आर शॉक्ड कि हमने तो इतना सोचा भी नहीं था. मैंने सोचा था 1 करोड़ का पैकेज, जो पता नहीं 10 करोड़ का कैसे हो गया. मैं डिजर्व भी करता हूं कि नहीं करता हूं, बट यस, नेचर गिव्स यू. सो प्योर एंड बर्निंग डिजायर. नेक्स्ट, इमीडिएट एक्शन प्लान. यू क्रिएटेड. अब वो फुटबॉल की टीम, उन्होंने सारी रिहर्सल तो कर दी, बट वो मैच खेलने ही नहीं गए, तो कोई फायदा होगा क्या? होगा कोई फायदा? मैच ही नहीं हुआ. सब प्रैक्टिस कर ली, मैच ही नहीं हुआ, कुछ फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा.
कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आपने वो किया ही नहीं ना जो करना था। तो आप जो भी अपने टारगेट सेट करते हो उसको आपको करना पड़ेगा। टिल द टाइम यू डू इट, हाउ विल गेट द रिजल्ट। मैं सोच लूं भाई मैं विजुअलाइज का बहुत अच्छी स्पीकर हूँ, बट आपके सेशन को लेने के लिए मैं आऊं ही नहीं, तो कुछ फायदा होगा क्या? कुछ फायदा होगा? आपका सेशन लूंगी तभी तो जो मैंने अपने स्पीकिंग स्किल्स को क्रिएट किया अपने माइंड में, तभी तो वो सामने आएंगे। तो आई नीड टू डू इट, आई नीड टू टेक एक्शन। योर विजुअलाइजेशन एफर्मेशंस डोंट रिप्लेस एक्शन। कई बार लोग इस मिथ में रह जाते हैं कि भाई हम विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन कर रहे हैं तो हमको तो भाई ऐसे ही हो जाएगा काम। ऐसे कुछ नहीं होता लाइफ में। फॉर एवरीथिंग यू नीड टू पे द प्राइस, you need to work hard. There is no shortcut in life. There is no shortcut. There is no shortcut. कई बार मुझे लोग आके बोलते हैं मैम हमें आपके जैसा बनना है, हमें आपके जैसा करना है, तो मैं बोलती हूँ देन प्लीज वर्क हार्ड। That is the only way. Only way. There is no shortcut. You need to work hard. You need to pay the price for everything. And always remember, कोई चीज अगर मुफ्त में मिल रही है तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। जितने हमारे एडवर्टाइजर्स हमको अगर फ्री में भी कुछ अगर दे रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उनकी। फ्री में कोई कुछ नहीं देता, भगवान भी नहीं देते हैं। Right? So you need to have an action plan. Then complete faith and doubtless plan. Mind. No plan B. Please remember, no plan B. The moment आपने सोचा अच्छा 1 करोड़ का पैकेज नहीं मिलेगा तो चलो 1 लाख का ही सही। ना 1 करोड़ मिलेगा ना 1 लाख मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाउट क्रिएट कर दिया। जैसे ही जैसे ही आप प्लान बी के बारे में जाते हो, आप क्या कहते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे डाउट है प्लान ए वर्क करेगा कि नहीं करेगा। एंड जहां डाउट आया आपका सिस्टम फॉल्ट हो गया, योर माइंड डज नॉट प्रोग्राम। ठीक है, सो वी नीड टू हैव अ कंप्लीट फेथ एंड डाउटलेस माइंड। एंड फाइनली यू नीड टू बी डिटैच्ड। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो वही है, कर्म करते जाओ, कीप वर्किंग हार्ड, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट्स। रिजल्ट आना ही है। अगर आपके सीड्स अच्छे हैं और आपने सीड्स को डाला है तो उससे फ्रूट तो मिलना ही है। लेकिन हर बार आप जमीन को खोद खोद को देखोगे कि अरे वो सीड कितना बड़ा हुआ, उसकी रूट कितनी बड़ी हुई, उससे शूट निकलना चालू हुआ कि नहीं हुआ, उससे पत्ते निकलने चालू हुए कि हुए नहीं हुए, तो पेड़ उगेगा? कभी नहीं उगेगा। आप दही जमाने रख दोगे और हर 5 मिनट में पतीले को खोल खोल के चेक करते रहोगे उंगली घुसा घुसा के कि भाई दही जमा कर, दही जमा क्या, दही जमा क्या, दही जमेगा? कभी नहीं जमेगा। वो तो जब आप डाल के पतीले को एक जगह शांति से छोड़ दोगे, बीज डाल के आप प्रॉपर उसका केयर करते रहोगे और उसे छोड़ दोगे, तब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी मेहनत करती जानी है और अपने कर्म पे फोकस करना है, जो काम करना उस पे, ना कि रिजल्ट पे। रिजल्ट अच्छा है अगर कर्म अच्छे हैं, मेहनत अच्छी है, इंटेंशंस अच्छे हैं और जो आप स्टेप्स ले रहे हो सारे स्टेप्स करेक्ट हैं, देन nobody in the world can stop you from being a superstar performer. So what are you waiting for? Just go and do it, just achieve it, right? So is this mind programming clear to all of you? Clear? Quickly on the chat box, quickly, quick. Good. Are you feeling more confident about yourself now? So just have a sip of water and we are left with say 20 minutes. अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं तो we'll bear with that. Is that okay? I'll love to take you through a meditation, a small meditation. Okay?
So shall I get started? Shall I get started? Shall I get started? Chat. Now I want all of you to be in a very relaxed posture. Very, very relaxed. जो भी posture आपके body को comfortable लगता है. If you want to sit on a chair, sit on a chair. You want to sit on a floor, sit on the floor. You want to take some back support, take a back support. Whatever gives you comfort and relaxation, sit like that. But just ensure that your spinal cord is straight. आपका spine straight होना चाहिए. Just we need to ensure that, otherwise everything is perfect. Just be very, very, very comfortable. And now I want all of you to take deep breaths. 3 deep breaths. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now just feel the relaxation in your body. Your entire body is relaxed. Your legs, your hips, your stomach, your chest, your hands, your shoulders, your neck, your face. Everything is becoming relaxed. Relax. 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 And now, at the tip of your tailbone, see your Muladhara chakra. Beautiful red color, 4-petaled lotus. See how beautiful it is looking. It is made of the earth element. Feel it. So beautiful, so divine. And from the cosmos, a beautiful red color energy is coming and getting projected on your Muladhara chakra, on your root chakra. See the increasing vibrations, the increasing power.
And now at the center of your root chakra, chant with me. Lam. 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 Feel the increasing vibration of your root chakra. Feel the healing energies. And now, along the Sushumna Nadi, move on to your sacral chakra. 4 fingers below the navel, 6-petal orange color lotus, full of water element. Feel the water. Hear its sound. Look at your sacral chakra, orange in color, made of 6 petals. So beautiful, so divine. And from the cosmos, a very pure, powerful, orange color energy is coming and getting projected on the sacral chakra. See the increasing vibrations. And at the center of sacral chakra, now chant with me. Vam. 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 Feel the increasing vibrations of your sacral chakra. The increasing energies. And now, through the Sushumna Nadi, move on to your navel, where lies your solar plexus chakra, your Manipur chakra. 10-petaled, yellow colored lotus, full of fire element.
Feel the warmth of the fire. How bright, how powerful. This is the fire in the belly that is giving you the confidence, that is giving you all the powers to achieve whatever you want to achieve. And now, from the cosmos, see the powerful yellow energy coming and projecting on your solar plexus. Feel the increasing vibrations. Feel the increasing energies. And at the center of your solar plexus, chant Ram. 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 Feel the increasing vibrations of your solar plexus. Feel the heat. Feel the warmth. See the increasing confidence in you. And now move on along your Sushumna Nadi and reach your heart center, wherein lies your heart chakra. 12 petaled green color. See its beauty. It's looking so beautiful. It is full of air element. Just feel the softness of the air. Feel its touch. Feel the sensations. And from the green color divine energy coming and projecting on your Anahat, increasing its frequency, increasing its power, increasing its divinity. And now chant with me at the center of your Anahat, center of your heart chakra. Yum. 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 And now see the increasing vibrations at your Anahat. As your vibrations are increasing at your heart center, your heart is opening to the universe. You're flowing with unconditional love, compassion, gratitude, forgiveness. The heart is oozing love to every creation in this universe. And now
Move along the Sushumna Nadi and reach your throat center, where lies your Vishuddhi Chakra, your throat chakra. 16 petal blue color lotus made up of space element. Just feel the vibration of it, of the Vishuddhi. And from the cosmos comes the blue color energy, which is projecting on your Vishuddhi. See its increasing power, its increased vibrations. And now at the center of your throat chakra, chant with me. Hum. 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 See the increasing vibrations at your Vishuddhi. It's getting more and more divine, more and more powerful. It is bringing a purity in you. You're becoming more pure, more powerful, more divine. And now you move along your Sushumna Nadi and reach the center of your brows, where lies your third eye chakra or the Agya chakra. Two-petaled indigo lotus. Vibrating with the grace of Guru. Guru Kripa se Prot. Feel the power, feel the divinity. And from the cosmos, a divine indigo energy is coming and projecting on your Agya, increasing its frequency, increasing its vibration. And now, at the center of Agya, chant Om. 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 As your third eye chakra is getting activated, you are becoming more clairvoyant. You are getting amazing clarity about everything. You can take better decisions now.
The kripa of your Guru is increasing. Your life is full of His blessings. And now, along the Sushumna Nadi, you reach your final destination. At the crown center lies your crown chakra or Sahasrar chakra, made of 1,000 petals, full of violet energy. And from the cosmos, see the divine violet energy coming and projecting on your crown chakra. See the increasing vibrations, the increasing divinity. And at the center of your crown chakra, now chant Om. 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 As the vibrations of your Sahasrar is increasing, you can feel the bliss inside you. You can feel the divine energies showering blessings on you. You are totally in a state of bliss. The divine grace is showering upon you. Feel the golden energy being showered upon you. And now, ask the divinity whatever you want in life. Everything will be given. You are the creator of your own destiny. Aham Brahmasmi. You have the power to write your own script. You are the creator. Visualize yourself at the age of 50. See how you are looking. So fit, so healthy. No less than what you used to look when you were 20. You have the same health, the same charisma, the same looks. In fact, your charm has increased. See how healthy you are at 50. Absolutely fit, like an athlete. Your physical quotient is really, really high.
but then you have paid a price for it. See what price you have paid for it. See your diet. See your sleep cycles. See your divine lifestyle. Just visualize. At the age of 50, you are so healthy. Even a 20-year-old will die to get your health. You're so fit, so healthy, so powerful, so divine. Just see what price you have paid to achieve it. What kind of lifestyle you have led over the years from 20 to 50. What lifestyle, what price you have paid. Nothing comes free in life. You have to pay the price for everything. And now, see your house. So beautiful. It's a luxurious bungalow. With such a beautiful garden and a swimming pool, a gymnasium, a home theater. Anything that you always wanted is there in your house. It's luxurious and at the same time very, very divine. Not less than a temple. And in your car park, you've got beautiful cars, all waiting to ride you. The latest models of all the cars are there. Just see, whatever you always wanted is there in your garage. You are at the top of your career. Your dream profession. You are a superstar performer, the best in your profession. You have no competition because you are the best. You are the best. But then again, nothing comes for free. What price have you paid to achieve this? What hard work has gone to reach to this level? Just visualize. Just visualize. And now see your family, your spouse, your children. Oh my God, such a beautiful family. Your parents are also there, your siblings are there. Such great bonding, oozing with love. You can't be blessed with a better family. Again, nothing comes for free in life. You have to pay the price for everything. So what have you done for your family to receive so much love from them? Just visualize the price you have paid.
the gratitude, the forgiveness, the unconditional love, the support, the care that has gone into the making of such a beautiful family. Visualize. And now, see your respect in society. You are so highly respected and regarded. Everyone wants to become like you. You are everybody's idol. You are everyone's mentor, friend, philosopher, and guide. You're always there to help everyone in whatever ways you can. Whatever you are earning, 1/4 always goes in charity, in helping those who are needy, who need your help. You're always there for them. You have created such a good name in the world for yourself. Again, nothing comes for free. You have to pay the price for everything. So visualize what price you have paid to get this love, this respect from society. And now focus on yourself, the real you, who you are, your soul. It is so enlightened. Your spiritual intelligence is so high. Your SQ scores are so high. You are living in soul consciousness. You are such an enlightened soul. Again, nothing comes for free. You have to pay the price for everything. So what have you done to achieve this powerful you in yourself? What have you done to achieve this Midas touch? What have you done to move from a journey of body consciousness to soul consciousness? Your life is perfect, so divine, so blissful, so successful, so happy. You can't ask for more. Thank God for whatever you have been blessed. Your heart is full of gratitude towards Him, towards the Almighty, for blessing you with everything in life. You can't ask for more. I am blissful. I am blissful. I am blissful. And now
Slowly come back in your body. Move your fingers. Rub your palms. Close your eyes. And with a feeling of gratitude, slowly open your eyes and thank God for the life He has gifted you with. Yeah. Welcome back. Welcome back. So, how was the meditation? Was it good? So, this was just a sample for you to understand how you need to do. Just remember the process. What we first did with the help of the chakra meditation, we entered our subconscious mind. By the time we reached the crown chakra, we were absolutely relaxed in the alpha mode. And then we started visualizing, right? And creating a life what we wanted to create. So this was just a sample. You can do the way you want to, or I'll be sharing this recording maybe for a few days. Just put this meditation on and meditate with this slowly. When you get used to it, then you can do it without it the way you want to. But this is the process, the way we can do. And trust me, it gives results. It gives results. Whatever you will visualize like this, and then work hard. I'll visualize that I will become so, but I'll not work hard. It won't work. Sorry. But people work hard in life, but they don't get results. It's actually very sad. But in your case, you will work hard and you will, in fact, your hard work will reduce. जितनी मेहनत की जरूरत होगी उससे बहुत कम मेहनत में आपका काम हो जाएगा बिकॉज प्रकृति आपको हेल्प करेगी बाय डूइंग दिस विजुअलाइजेशन यू आर सेंडिंग एनर्जीज in the universe, in the environment, that this is what I want. So the like energies will be attracted towards you. And when you start working, the neural pathway is all set. The energies are sent in the universe. So those energies are being attracted towards you, then who can stop you from being a superstar performer? So, all the best to all of you, right? And please meditate like this every day. It does not take much of a time, 15-20 minutes, but we can always take out that much time. It will definitely give you a lot of results. Yes, some were asking about the link. I'm sharing the link again. This is the link of the WhatsApp group. If any of you want to join, you can just click on this and join the group where I can give you a support after the session ends in the 6 days. Because after that, when you're practicing meditating, you will be having a lot of different experiences and you won't be sure whether it is correct, I am on the right path or not. And then you can ask, and I am always there to help you, right? This is my, what to say, my soul agenda, what I want to do. So with this, we end the session for today.